Now let's begin the textual exercise of chapter number 8. The first question of this exercise is Nanas and Alvars were. The correct answer is Bhakti sons from South India who composed songs praising the gods Vishnu and Shiva. Question number 2 is the Virashaiva movement was founded by. The correct answer is Basavana. Question number 3. Who established the 4 mathas for the propagation of his philosophy? The correct answer is Sankaracharya. Okay. Now come to the question number 4. The famous Dargah at Ajmer is the final resting place of which Sufi sant? The correct answer is Muhyiddin Chishti. 5th, Kabir preached his thought in beautiful couplets known as. The correct answer is दोहाज. कबीर के दोहे आप लोगों ने बहुत सुने होंगे अपने चैप्टर्स में, हिंदी के चैप्टर्स में, है ना? ओके. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. State whether the following statements are true or false and rewrite the incorrect statements to correct them. ठीक है. अब फर्स्ट क्वेश्चन इज Sufi and Bhakti movement share several similarities. It is true. Now come to the question number 2. Adi Sankaracharya rejected the authority of the Vedas. It is false. Adi Sankaracharya reformed early Vedic philosophy and not rejected the authority of the Vedas. It's reform. उन्होंने सुधार किया इसमें. Okay, it is false. Next is the followers of Guru Nanak ate in the common kitchen called langar. It is true. Now come to the question number 4. A large number of Sufis from Central Asia settled down in India from the 9th century onwards. It is false. It is a large number of Sufis from Central Asia settled down the India from the 11th century onwards. ठीक है, 11th century के onwards यहाँ पर जो सेंट्रल एशिया के सूफीज़ थे वो आके सेटल होने लगे. बाबा शेख फरीद preached in Haryana and Punjab. It is false. बाबा शेख फरीद preached in Punjab only. ठीक है. So this way our true and false is over. Now come to the one sentence question answer. Question number 3. Answer the following in one sentence. What do you understand by term Advaita? क्या समझते हो अद्वैत से? तो इसमें आपको क्या लिखना है? In the doctrine of Advaita, ultimate reality considered as the joining of the individual soul and the supreme God. ठीक है, इसमें यहाँ अद्वैत मीन्स दोनों एक माना गया है. जो इंडिविजुअल सोल आत्मा और परमात्मा को एक ही में कंसिडर किया गया है, वही सुप्रीम गॉड है. ठीक है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. Nand Rishi was a Sufi mystic from which state of India? किस स्टेट थे नंद ऋषि? Nand Rishi was a Sufi mystic from Kashmir. Okay. Question number 3. Which book contains Mirabai's song? बहुत पढ़ा, मीराबाई के सॉन्ग्स आप लोगों ने बहुत पढ़े होंगे हिंदी में. पदावली कंटेन्स मीराबाई सॉन्ग्स. क्या नाम है? पदावली. Question number 4. Name the various silsila or orders of the Sufis. The main Sufi religious orders in India were Chishti, फिर सोहरावर्दी एंड नक्शबंदी. ये सारे सूफीज रिलीजियस ऑर्डर्स थे. हाँ,
फिर क्वेश्चन नंबर 5, नेम सम फेमस फीमेल भक्ति सेंट्स ऑफ द मिडिवल पीरियड। Famous Bhakti sons of the medieval period are Mirabai, Akka Mahadevi, Andal, Janabai, Ganasati and Ratan Bai. These were the famous female Bhakti sons. यहाँ पर आपको फीमेल भक्ति संत के बारे में बताना है, तो बहुत याद नहीं रह सकता, तो मीराबाई ज़रूर याद रखना एंड अक्का महादेवी, इनको ज़रूर याद रखना, दो एटलीस्ट आपको याद रखना चाहिए। Now come to the question number 4. Question number 4, answer the following question in brief. ठीक है, Who were the Alvars and Nainas? Alvars और Nainas कौन थे? अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, The Bhakti movement in South India was spread by the Alvars and Nainas. जो भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया में स्प्रेड हुआ वो दो जो सेक्ट्स थे उनके द्वारा, एक अलवर्स और दूसरे नैनास। जो अलवर्स थे दे वेयर द डिवोटीज ऑफ विष्णु और जिसको वैष्णविट्स कहा गया, वाइल द नैनास जो थे दे वेयर द डिवोटीज ऑफ शिवा और जिनको सेविटिस कहा गया। दे प्रीच्ड पर्सनल डिवोशन टू गॉड एज अ रूट टू सल्वेशन, और मीन्स मोक्ष की प्राप्ति जो है वो इसमें कि इस गॉड जो है शिव को या विष्णु को मानकर हम जो मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कम द क्वेश्चन नंबर 2. The Marathi poet Sense rejected the idea of renunciation. What were the other teaching of this poet Sense? मतलब इन्होंने जो रिनंसिएशन जो संन्यास लेने का तरीका है उसको रिजेक्ट किया, क्यों, क्या कारण था उसके? देखो, टीचिंग ऑफ मराठी सेंस, द मराठी पोएट सेंस फोकस्ड ऑन द नोशन ऑफ पर्सनल गॉड रिसाइडिंग इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल। उनका ये कहना था कि भगवान हमारे अंदर ही हैं। दे रिजेक्टेड ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअलिज्म एंड सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन बर्थ। उन्होंने इसको मतलब जो पहले ये चले आ रहा था कि जो फॉर्म्स रिचुअलिज्म है या सोशल डिफरेंसेस है, जैसे जिस शूद्र का के घर में जो पैदा हुआ वो शूद्र ही कहलाएगा, जो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ ब्राह्मण ही, तो ये डिफरेंसेस क्रिएट करते वो जो थे मराठी सेंस, इन्होंने इसको अपोज किया। They also rejected the idea of renunciation and preferred to live with their families, earning their livelihood. मीन्स ये नहीं कि संन्यास बन जाओ, घर बार छोड़ दो, अपनी फैमिली को छोड़ दो, इस आइडिया से they were keep themselves apart, अलग रखते थे। उनको ये नहीं था, उनको विश्वास था कि आप फैमिली के साथ साथ उनके लाइवलीहुड में भी आपको मदद करना चाहिए, ये नहीं कि संन्यास ले लेना चाहिए। They also rejected the idea of they emphasized the new humanist idea of sharing each other's pain, और उन्होंने ज़्यादा जोर किया कि सभी को एक दूसरे के दुख दर्द में साथ देना चाहिए। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. Who was the founder of Mahapuruksha Dharma? What were the major tenets of his religious teaching? कौन थे और उनका religious teaching क्या क्या था? तो यहाँ पर आपको लिखना है, श्रीमंता शंकर देवा फाउंडेड द रिलीजियस सेक्ट known as Mahapuruksha Dharma. His main tenets were he opposed the caste system and stressed on social synthesis. कास्ट सिस्टम को अपोज किया और सामाजिक जो व्यवस्था है वो इक्वलिटी पर ज़्यादा जोर दिया। His verses about the glory of Lord Krishna continue to be popular today. और उनकी जो वर्सेस जो दोहे थे, जो पोइट्री थी, जो वो श्री कृष्ण के महिमा का बखान करते थे। Now come to the question number 4. Question number 4. What were the various practices of the Sufis? कौन कौन से उनके वेरियस प्रैक्टिसेस थे सूफीज़ के? तो some practices of the Sufis as
as follows. Sufis developed elaborate methods of training using zikr, chanting of a name, फिर contemplation, singing, जिसमें म्यूज़िकल रिसिटेशंस है, जिसको शमा कहा जाता है, शमा, डांसिंग, डिस्कशन ऑफ पैराबल्स, जो मतलब कहा गया शेइंग्स है जो उनके बारे में डिस्कशन करना, ब्रीथ कंट्रोल अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर और पीर हु वाज द मेन रिलीजियस टीचर। तो ये सारे काम होते थे जो उनके ट्रेनिंग में सूफीज़ डेवलप्ड, जो विचारधारा थी, आइडियोलॉजी थी उसमें। फिर बोथ द पीर एंड हिज डिसाइपल लिव टुगेदर इन खानखाशात। ये जो पीर और उसके जो उसको मानने वाले थे वो एक जगह रहते, तो उसको कहा जाता था खानखाशात। स्टार्टेड एज अ काइंड ऑफ रेस्ट हाउस। इस रेस्ट हाउस के तौर पर उन्होंने इसको शुरुआत की फॉर ट्रैवलर्स, बट केम टू रिजेंबल अ मोनास्टिक एस्टैब्लिशमेंट। और फिर बाद में ये क्या हुआ, मोनास्टिक एस्टैब्लिशमेंट हो गया, मतलब जो सन्यासी है उनका एस्टैब्लिशमेंट होने लगा। व्हेन द हेड ऑफ कनखा डाइड, हिज ग्रेव और दरगाह बिकेम अ पिलग्रिम सेंटर। अब ये जो हेड होते थे कनखा के, जो टीचर होते, सूफी टीचर्स होते थे, उनके मरने के बाद उनका ग्रेव जो था वो दरगाह बिकम अ पिलग्रिम सेंटर, पिलग्रिम तीर्थ स्थान बन जाता था। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट वाज आदि शंकराचार्य कंट्रीब्यूशन टू द भक्ति मूवमेंट? उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है आदि शंकराचार्य की भक्ति मूवमेंट के लिए? तो कंट्रीब्यूशन ऑफ आदि शंकराचार्य, Shankaracharya is remembered as one of the first Hindu thinkers who reclaimed and reformed early Vedic philosophy. उसने उसको रिमूव नहीं किया, अर्ली वैदिक फिलोसफी को रिफॉर्म किया, सुधार उसमें जो थोड़ी जो गलतियाँ है, जो उसको शायद उसमें सुधार करके उसको और अच्छा बनाया जा सकते, तो वैसा किया उन्होंने। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ 4 मठास और मोनास्टिक सेंटर एट श्रृंगेरी। 4 उन्होंने मठ की स्थापना की। फर्स्ट श्रृंगेरी एट कर्नाटका, सेकेंड द्वारका गुजरात, पुरी उड़ीसा एंड ज्योतिर्मठ एट उत्तराखंड। ये 4 जगहों में, कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा एंड उत्तराखंड में, विद द एम ऑफ प्रोपगेटिंग हिज फिलॉसफी। और किस लिए किया कि उनके जो एम है उसको प्रोपोगेट करना, उसको फैलाना। ठीक है, now come to the question number 5, answer in detail. First question of this, explore some important beliefs of the bhakti movement, and the answer is some important beliefs of bhakti movement are as follows. First, believes in the idea of supreme god, मीन्स जो गॉड है सबसे ऊपर है, सुप्रीम है। हाँ, ये आइडियोलॉजी थी भक्ति मूवमेंट की। रिजेक्शन ऑफ कास्ट सिस्टम, झील टू ब्रेक द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। ठीक है, फिर एम्फेसिस ऑन लव, डिवोशन एंड कंप्लीट सरेंडर टू गॉड, उस पर ज़्यादा जोर दिया गया। रिजेक्शन ऑफ एलेबरेट रिचुअल्स, जो कर्म कांड होते थे, जो बहुत सारे प्रेयर्स में जो गॉड को प्रे करने का जो तरीका था, बहुत रिचुअल्स होते थे, बहुत सेक्रीफाइसेस वगैरह होते थे, तो उसके अगेंस्ट थे, उनको रिजेक्ट किया भक्ति मूवमेंट ने। पोएट्री, हाइम्स, म्यूजिक एंड डांस एज अ वे टू रिमेन इन टच विद द डिवाइन, यूज ऑफ लोकल लैंग्वेज टू स्प्रेड देयर आइडियाज, वर्शिप ऑफ गॉड आइदर विद फॉर्म और विदाउट फॉर्म। मतलब गॉड को जो प्रे करने का तो वो फॉर्मलेस होता था या तो फॉर्म के साथ, मतलब उनका एक आकार दे दिया जाता था, और बहुत सारे ऐसे थे तो बिना आकार, निराकार उनकी पूजा करते थे। रिजेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल पीपल, क्वेश्चनिंग ऑफ अथॉरिटी इवन ऑफ किंग्स एंड रूलर्स,
rejection of mediators between a human being and God in the form of priest. सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि ये जो भक्ति मूवमेंट में जो पहले क्या था, जो ब्राह्मण का ही एक अधिकार था कि गॉड के बीच, गॉड और एक इंडिविजुअल के बीच का जो जरिया है, वो रास्ता, जो माध्यम है, वो ब्राह्मणों के थ्रू होकर जाएगा, जिसके कारण ब्राह्मणों ने भी ये पूरे समाज को कास्ट बेस्ड में डिवाइड कर दिया और बहुत सारे जो कर्म कांड है वो लेकर आ गए सोसाइटी में। तो ये जो भक्ति मूवमेंट था, तो उसमें ये जो ब्राह्मणों का जो इंटरफेरेंस था उनको रिजेक्ट किया गया। हाँ, मतलब यहाँ पर बताया गया कि ह्यूमन बीइंग और गॉड के बीच कोई भी प्रेस्ट नहीं है। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। मेंशन सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट जो चला तो उसका क्या फीचर्स थे, तो वो जैसे साउथ इंडिया में नैनाज और अलवर्स थे, तो नॉर्थ इंडिया में क्या था। The Bhakti movements in India, North India, was characterized by saints such as Kabir and Guru Nanak. ये इन संत के थ्रू हम इस मूवमेंट को देख पाते हैं। Their teaching form the features of the Bhakti movements in North India. कबीर का क्या था? He believed one God whom he called by several names such as Govinda, Hari, सेंट, साहिब, अल्लाह एंड रामा। उनका ये तो भगवान एक है और हम उनको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कबीर वॉज अगेंस्ट आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा के अगेंस्ट में थे। रिचुअल्स एंड पिलग्रिमेजेस, और जो रिचुअल्स होते थे या पिलग्रिमेजेस होते थे उनके अगेंस्ट थे। बिकॉज ही बिलीव्ड इन द इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, ही अपोज्ड ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इक्वलिटी ऑफ ह्यूमन को बिलीव करते थे। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स जो आपस में भेदभाव, उसको वो नकारते थे। रिजेक्टेड कास्ट, सुपरस्टिशंस एंड प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, इनको भी ये रिजेक्ट करते थे कि कास्ट सिस्टम जो चल रहा है वो, या अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिसेस होती है, अछूत का छुआछूत वाला जो सिस्टम था, उसके भी अगेंस्ट थे। He felt that a person can be reformed under the guidance of a guru or a teacher. Means किसी भी जो पर्सन है कैन बी रिफॉर्म्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ, उनके गुरु के संरक्षण में वो अपने आप को भगवान के समीप और अपने आप में सुधार ला सकता है। और गुरु नानक का क्या था? गुरु नानक लेड एम्फेसिस ऑन वन गॉड, उन्होंने भी वन गॉड पर ही एम्फेसिस दिया। पायसनेस ऑफ कैरेक्टर, पवित्रता होनी चाहिए, एंड कंडक्ट एंड नीड ऑफ अ गुरु और टीचर, यहाँ पर भी उन्होंने गुरु की महिमा का बहुत ज़्यादा जोर दिया है। ही स्ट्रांगली denounced superstition and idol worship. His idea liberation was the pursuit of an active life with a strong sense of social commitment. तो इस तरह से ये गुरु नानक और कबीर जो थे, उनकी भक्ति मूवमेंट नॉर्थ इंडिया में चली। दोनों का मोटो एक ही था, भगवान एक है। दे वर अगेंस्ट ऑफ द आइडल वर्शिप, दे वर अगेंस्ट ऑफ द कास्ट बेस्ड सिस्टम, है ना। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर द मेजर टीचिंग्स ऑफ कबीर? कबीर के मेजर टीचिंग्स क्या थे? तभी हमने देखा। Let's see. Kabir preached humanity, reverence, peace and love as necessary attributes to achieve unity with God. He believed in one God whom he called by several names: Govinda, Hari, Sant, Allah, Sahib and Rama. He was against ideal worship, rituals and pilgrimage. Because he believed in the equality of all human beings, he opposed all kinds of discrimination, rejected caste superstitions and the practice of untouchability.
he felt that a person can be reformed under the guidance of a guru or teacher. यहाँ पर उन्होंने गुरु और टीचर की जो उपस्थिति है उस पर काफ़ी जोर दिया, उनकी महिमा पर जोर दिया. Now come to the question number 4. How did the teacher-disciple relationship form the backbone for the spread of Sufi movements in India? ये जो टीचर डिसाइपल रिलेशनशिप था कैसे बैकबोन का काम किया फॉर द स्प्रेड ऑफ द सूफी मूवमेंट. तो आंसर है टीचर डिसाइपल रिलेशनशिप इन द सूफी मूवमेंट. अब टीचर शिक्षक, डिसाइपल जो उनको अनुसरण करता है. हाँ, तो द डिसाइपल वाज कॉल्ड मुरीद, and both the peer and his disciple lived together in the khanqahs that started as a kind of rest house for travelers but came to resemble a monastic establishment. वो क्या हुआ, शुरुआत में एक तरह का ट्रैवलर्स के लिए रेस्ट हाउस था, लेकिन बाद में इट रिजेंबल अ मोनास्टिक एस्टैब्लिशमेंट, मतलब जो धर्म गुरुओं के रहने का एस्टैब्लिशमेंट था. When the head of Khanqa died, his grave became a pilgrim center. The peer chose one of his disciples as the successor to carry on his word. अब इसमें क्या होता है कि जो गुरु या टीचर जो होता है उनके मरने के बाद वो खानका में जो हेड होता था, उनके मरने के बाद उनका जो दरगाह होता है उसको पिलग्रिम सेंटर बना दिया जाता था और उसे पीर चूज़ करते थे कि उसका डिसाइपल कौन, जो डिसाइपल होगा वो उनका सक्सेसर होगा और उसके बाद जो उसके वर्ड्स है वो कैरी फॉरवर्ड होगा, मतलब वो आगे बढ़ता जाएगा जनरेशन टू जनरेशन. इस तरह से हर एक पीर अपने सक्सेसर डिसाइपल में से अपने सक्सेसर को नियुक्त करता था. द सक्सेशन ऑफ पीर वॉज नोन एज सिलसिलास. जो पीर का जो सक्सेशन होता है उसको सिलसिलास कहते थे और रिलीजियस ऑर्डर्स बोलते थे. ईच फॉलोइंग इज स्लाइटली डिफरेंट मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड रिचुअल प्रैक्टिस. हर एक का थोड़ा थोड़ा अलग जो उनका प्रैक्टिसेस था या रिचुअल मेथड्स होता था वो थोड़ा डिफरेंट होता था. ठीक है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. डिफाइन सूफिज्म एंड इट्स मेजर टेनेट्स. तो सूफिज्म द मिस्टिकल मूवमेंट इन इस्लाम इमर्ज टू रिजेक्ट एलेबरेट रिचुअल्स. जो सूफिज्म है वो इस्लाम से उत्पन्न हुआ, उसके जो एलेबरेट रिचुअल्स थे उसको रिजेक्ट करने के लिए. कोड्स ऑफ बिहेवियर एंड आइडियल वर्शिप. सूफिज्म इज अ बिलीव दैट वन कैन बिकम यूनाइटेड विथ गॉड थ्रू प्रेयर्स, मेडिटेशन एंड बाय लिविंग अ सिंपल लाइफ ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन. मेन टेनेट्स ऑफ जो इनके सीख थे वो क्या थे सूफिज्म का, क्या ज़्यादा जोर दिया उन्होंने. एम्फेसिस ऑन कंपैशन टुवर्ड्स वन एंड ऑल. रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजियसिटी. रिजेक्शन ऑफ कोड्स ऑफ बिहेवियर प्रैक्टिस बाय मुस्लिम स्कॉलर्स. अलग अलग तरह के उनके बिहेवियर प्रैक्टिस होते थे, हाँ, कोड्स ऑफ कंडक्ट होते थे, तो उनको रिजेक्ट किया. एम्फेसिस ऑन लव, devotion and complete surrender to God. Rejection of rituals, poetry, music, dance as a way to remain in touch with the divine. मतलब जो डिवाइन में टच रहने के लिए कि नहीं रिचुअल, एलेबरेट रिचुअल के थ्रू वो डिवाइन से टच रहेंगे, देवता से टच रहेंगे, बल्कि प्रेयर, पोइट्री, म्यूज़िक, डांस के थ्रू इसमें बताया गया था कि किस तरह से हम लोग जो अपने डिवाइन पावर सुप्रीम गॉड के टच में रह सकते हैं. फिर रिचुअल्स इन द फॉर्म ऑफ कलेक्टिव प्रेयर्स. प्रेयर्स पर ज़्यादा जोर दिया गया. रिजेक्शन ऑफ आइडल वर्शिप में को नकारा गया. एंड बिलीव इन इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड. इक्वलिटी पर ज़्यादा जोर दिया गया. तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो सूफी मूवमेंट है या भक्ति मूवमेंट है उन पर ये 2-3 बातें पर बहुत ज़्यादा जोर किया. मीन्स वननेस ऑफ गॉड, सुप्रीम पावर जो है सुप्रीम गॉड है, और जो आइडल वर्शिप को रिजेक्ट किया गया और कास्ट बेस्ड सिस्टम को रिजेक्ट किया गया. इन दोनों मूवमेंट में जो एलेबरेट रिचुअल्स थे उनको रिजेक्ट किया गया.
ठीक है, और उसकी जगह पोइट्री, म्यूज़िक, डांस इत्यादि तरीक़ों से भगवान से जुड़ने का रास्ता बताया गया। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर ओवर। You have to write the question answer in your notebook very neatly, properly. Okay, and one word meaning of this chapter I will send with PDF. You have to write in your CW. Okay, bye. Thank you, student.